Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well and staying safe during this Ramadan. Now the theme of today's seminar or workshop is professional email writing skills. Before we actually go on to the actual seminar and workshop and you find out why email writing is so important, let me just say that I hope you find this video and this seminar useful, and the fact that you have my video here will be more interactive for you, more interesting for you, and you will find it easier to learn through this way. Now during the seminar you're going to be seeing my video in one of the corners as well as the presentation slides while we're going on discussing it. So hopefully this will be easier for you, and you'll be able to understand more quickly and much more effectively. So let's start with our seminar today. Now, as I said before, the theme of today's workshop is professional email writing skills. Before I go on to the actual seminar or workshop, uh, let's look at the contents of this seminar so that you are able to understand why it is so important that you're being given an entire seminar based around the skill of email writing. Now, if you see here, the first thing in the contents is the importance of email writing. In this section, we are going to establish how important email writing is and why it is so important that it is going to play an important role in your future professional lives as well as in your current communication methodology. Once we determine or establish the importance of email writing, then we'll move on to the actual steps that you can take while writing your email. The first step before you write your email is the preparation for an effective email, and in this section I'm going to discuss the things that you need to keep in mind so as to construct a good effective email for effective communication. In the next step, we are going to move on to the actual writing action of the email, and I'm going to provide you with a number of tips and examples on how you can make your email the most effective form of communication and tool that you are going to use and stand out from the rest of the people in your professional lives. The next step is going to be one of the major issues that we have with emails or any other form of written communication for that matter, which is the tone of your written communication. We are going to discuss 3 different types of email tones and how can you have your email appropriately styled and toned based on the audience and goal of your email. Once we have discussed all of the preparatory material for emails and the effective tips that you can take for your email writing as well as the tones, then we are going to have a comparison of 2 emails that I'm going to give you as an example. I will discuss these emails, but hopefully you yourself will also be able to identify कि अच्छी email में क्या अच्छी बातें हैं और बुरी email में क्या खामियां हैं. ये अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इट मीन्स कि आपको पीछे वाली सारी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हुआ है एंड नाउ यू आर एबल टू write and identify good emails. उसके बाद before we end, we will discuss some of the tips that you can use to review your emails before you hit the send button, and hopefully this will improve your email writing experience. So let's start with the first slide. The importance of email writing. Now why is email writing so important? जैसे मैंने कहा आपको पूरा एक सेमिनार दिया जा रहा है इसके ऊपर, तो ये email writing क्यों इतनी important है? email writing इसलिए इतनी important है और effective email writing इसलिए इससे ज़्यादा important है क्योंकि email is one of the most used forms of written communication in the world. दुनिया भर में email को बहुत से ज़्यादा different purposes के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कि आप अपने official सारी communication email की basis पे करते हैं, उसके अलावा आप अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी ईमेल की बेसिस पे करते हैं. आपने किसी अपने कॉलीग से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बात चाहिए, तो यू जस्ट स्टार्ट एन ईमेल थ्रेड और उस पर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लोग पर्सनल ईमेल्स इस्तेमाल करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी. इसके अलावा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन भी यूज़ होती है ईमेल के थ्रू. एंड देन सिंगल रेसिपिएंट या मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भी आप ईमेल्स भेजते हैं. किसी क्लास को भेज रहे हैं, टीम को भेज रहे हैं, कॉलीग्स को भेज रहे हैं, क्लाइंट्स को भेज रहे हैं, या किसी एक बंदे को भी ईमेल भेजनी है तो आप ईमेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा ईमेल्स एडवर्टीज़मेंट्स के लिए, स्पैमिंग के लिए, इश्तिहार भेजने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए हर तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं ईमेल्स. तो इसका मतलब है कि ईमेल्स को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है. एंड बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, ईमेल्स के साथ प्रॉब्लम्स भी कुछ आ सकते हैं. प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर आपकी ईमेल, क्योंकि इट इज़ अ फास्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ईमेल में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो ईमेल मिस इंटरप्रेट की जा सकती है, कन्फ्यूजन कॉज हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है,
ईमेल की टोन अगर सही नहीं है तो एम्बिग्विटी हो सकती है। इसलिए फिर आपका नेक्स्ट इशू जो इससे अराइज़ होता है, जो कॉन्सिक्वेंस बनता है, वो ये है कि आप जब रेसिपिएंट को पता नहीं चलेगा कि आपकी ईमेल में एग्जैक्टली लिखा क्या है या आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो वो आपको वापस ईमेल करेंगे, फिर आप उस ईमेल के जवाब में क्लैरिफिकेशन देंगे, फिर वो अगली बात पूछेंगे, फिर आप उसकी क्लैरिफिकेशन देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली गोइंग टू कॉज अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी बैक एंड फोर्थ चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल्स के थ्रू थ्रेड आपका लंबा होता जाएगा जिसमें आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन बोथ द एंड्स। इसलिए अगर ईमेल को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली लिखा जाए तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स और इश्यूज से बचा जा सकता है। अब ईमेल लिखने के लिए आपको कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है ताकि आपकी ईमेल इफेक्टिव ईमेल बन सके। द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज़ दैट आपकी ईमेल्स के लिए हम एक स्टेप यूज़ करेंगे, इसको एक रूल हम कहते हैं। ये रूल है 3 C's ऑफ ईमेल राइटिंग। द 3 C's ऑफ ईमेल राइटिंग आर क्लियर, कंसाइज एंड करेक्ट। आपकी ईमेल क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। आपकी ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज एज ए सेड बिफोर एम्बिग्विटी होगी, कन्फ्यूजन होगी और फिर एक बैक एंड फोर्थ सवाल जवाब का सिलसिला चल पड़ेगा। सेकेंडली, आपकी ईमेल को कंसाइज होना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ फास्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल्स आर इफेक्टिव ओनली व्हेन दे आर शॉर्ट एंड स्वीट, दे आर स्मॉल एंड दे आर डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके अलावा आपकी ईमेल करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट होने से मुराद दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने कहा, ईमेल में जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सारी सही होनी चाहिए। सेकेंडली, ईमेल की फॉर्मेटिंग, ईमेल का टेक्स्ट, ईमेल में आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, टेंसेस की मिस्टेक्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो हर लिहाज से करेक्ट होनी ज़रूरी है। अब अगर आपने अपनी ईमेल को क्लियर, कंसाइज और करेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपकी ईमेल की कंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईमेल की कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने जहन में रखनी है वो है आपकी ईमेल का पर्पस। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी ईमेल का कोई पर्पस है या नहीं। आप बिला वजह ईमेल करें या कोई वजह है, कोई बात है, कोई आपको रिजल्ट चाहिए, तो ईमेल शुड बी गोल ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड। उसके बाद आप ईमेल किसको कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है, आप इस बेसिस पे डिटरमिन करेंगे कि आपकी ईमेल का अप्रोप्रिएट स्टाइल और टोन क्या होनी चाहिए है। अगर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं, किसी फॉर्मल क्लाइंट से बात कर रहे हैं, किसी कॉलीग से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, इन बेसिस पे आपकी ईमेल का आप अप्रोप्रिएट स्टाइल और टोन अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्टली, आपकी ईमेल के पैराग्राफ्स इफेक्टिव होने चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ईमेल क्लियर भी होगी, कंसाइज भी लगेगी और ईमेल को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा। सेकेंड टिप, सो गोइंग ऑन टू द फर्स्ट टिप। द फर्स्ट टिप इज़ द इंटेंशन ऑफ योर ईमेल। जैसे हमने पहले कहा कि आपकी ईमेल में आपने डिटरमिन करना है सबसे पहले कि आपकी ईमेल का क्या पर्पस है। आपकी ईमेल का कोई गोल होना चाहिए, इट शुड बी गोल ओरिएंटेड। ईमेल के जवाब में आपको क्या रिजल्ट, क्या रिस्पॉन्स चाहिए, दैट इज़ योर गोल। आप चाहते हैं कि अगले बंदे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वो आपका गोल है, या आप चाहते हैं कि अगले बंदे से आपको कोई रिस्पॉन्स मिले, वो आपका गोल है। इसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो आपकी ईमेल की सब्जेक्ट लाइन है। अपने गोल, पर्पस या इंटेंशन को एविडेंट बनाने के लिए या स्पेसिफिक बनाने के लिए आपकी सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सब्जेक्ट लाइन इफेक्टिव होनी चाहिए और डायरेक्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए ताकि आपके रेसिपिएंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि आपकी ईमेल किस चीज़ के बारे में होगी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज शो यू एन एग्जांपल ऑफ अ बैड सब्जेक्ट लाइन एंड अ गुड सब्जेक्ट लाइन। अब बैड सब्जेक्ट लाइन में देखिए आपकी सिर्फ मीटिंग लिखा हुआ है, ये बहुत वेग है, बहुत एम्बिगुअस है। किसकी मीटिंग है, कौन लोग इस मीटिंग में होंगे, किस बारे में है, कब है, कहाँ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो दिस इज़ वेरी एम्बिगुअस और इफेक्टिव नहीं है। आपकी गुड सब्जेक्ट लाइन में आपके पास है प्रोसेस मीटिंग 11 AM 6 फरवरी 2020। तो आपको ये पता चल गया कि ईमेल किस बारे में, प्रोसेस मीटिंग है। उसके बाद कितने बजे है और किस दिन है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट लाइन से एविडेंट हो गई। ईमेल आपको खोलने से पहले ही आपका जहन तैयार हो गया कि इस ईमेल में इस बारे में बात की जा रही है। सो दिस इज़ अ गुड सब्जेक्ट लाइन। सेकेंड टिप इज़ समराइज। आपकी ईमेल में आपकी बैकग्राउंड समरी होनी चाहिए ताकि आप जिसको भी ईमेल करें उसको ही बिकम्स अप टू स्पीड विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उसको पता चल जाए कि इस ईमेल के पीछे की सारी क्या बातचीत है। हाउएवर ये आप सिर्फ तब करेंगे जब एक ईमेल चेंज या ईमेल थ्रेड ना चल रहा हो। अगर आपके पास ईमेल चेंज या थ्रेड चल रहा है तो फिर उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या समरी देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है
कि आपकी ईमेल के बाकी सारे थ्रेड्स पीछे नीचे अवेलेबल हैं, वहाँ से सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ईमेल किस बारे में क्यों की जा रही है, इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, वो सारी बातें उससे एविडेंट हो जाएंगी। तो फिर समरी दे के अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ईमेल में अपनी समरी भी अगर आप दे रहे हैं तो आपको ईमेल को कंसाइज बनाना है। कंसाइज बनाने के लिए हम बहुत सी एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ। सबसे पहली एब्रीविएशन है एंड ऑफ डे, विच इज़ EOD। एंड ऑफ डे हम इस्तेमाल करते हैं अगर मैं आपसे इन्फॉर्मेशन मांगूँ बाय EOD, इट मीन्स कि मुझे आज दिन के एंड तक ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ऑल्टरनेटिवली हम एंड ऑफ डे की जगह EOW भी इस्तेमाल करते हैं, विच मीन्स एंड ऑफ वीक, यानी हफ्ते के एंड तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। नेक्स्ट इज FYI। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी इससे वाकिफ़ होंगे। FYI स्टैंड्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये तब आप किसी को भेजते हैं जब आपको उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बस आपने उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये उनको ईमेल भेजी दी है। द नेक्स्ट इज PFA, विच इज़ प्लीज़ फाइंड अटैच। ये आप तब लिखते हैं जब आप अपनी ईमेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करें, और वो डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप ये नहीं लिखेंगे पूरी कहानी, तमहीद नहीं बांधेंगे कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन भेजनी थी तो मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट मैंने ईमेल के साथ अटैच कर दिया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सिंपली राइट PFA एंड देन दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच है जिसमें इन्फॉर्मेशन है। द नेक्स्ट इज ASAP। बहुत से स्टूडेंट्स इससे भी वाकिफ़ होंगे। ASAP इज़ एज सुन एज पॉसिबल। एज यू कैन सी मैंने 4 वर्ड्स की जगह 4 लेटर्स इस्तेमाल किए तो मेरी ईमेल कंसाइज हो गई है, शॉर्ट हो गई है। द लास्ट वन इज EOM, विच मीन्स एंड ऑफ मैसेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बाकी में थोड़ा सा फ़र्क है इसलिए क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट लाइन में, बाकी सब हम ईमेल की बॉडी में इस्तेमाल करते हैं, मगर EOM ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में इस्तेमाल किया जाता है। और आप सब्जेक्ट लाइन में ही अपना मैसेज लिख के आगे EOM लिख देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी ईमेल की बॉडी जो है वो खाली है, एम्प्टी है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये भेजेंगे किसी को, उनके इनबॉक्स में ये ईमेल आएगी, साथ सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई होगी, तो उनको ईमेल खोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको वहीं से पता चल गया है कि ईमेल खाली है, जो मैसेज कन्वे करना था वो सब्जेक्ट लाइन में कन्वे कर दिया गया, तो मुझे ईमेल खोल के टाइम वेस्ट नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट योर ईमेल शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। ईमेल को वेल ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी ईमेल्स को क्रोनोलॉजिकली कैटेगराइज करें। इसका मतलब ये है कि आप ईमेल को सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे और हर सेक्शन आपका डेडलाइन या टाइमलाइन के बेसिस पे होगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई टास्क है जिसकी डेडलाइन पहले है तो आप वो पहले लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जो टास्क है जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट है वो लिखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप ईमेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कोई दे रहे हैं तो वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगी। इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ था इस डेट को, उसके बाद क्या हुआ इस डेट को, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है। सो इट हैज़ टू बी डेट वाइज अरेंज्ड। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी ईमेल को सेगमेंट कर सकते हैं टास्क वाइज या इंडिविजुअल वाइज। ये तब होता है जब अगर आप एक ईमेल ग्रुप को भेज रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट लोगों के नाम लिख के उनके आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जिस इंसान का जो काम है वो अपना डायरेक्टली अपना नाम देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और अपने आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेगा। उसको 10, 12, 15, 20 लाइन्स का पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा बीच में से अखज़ करने के लिए कि उसका क्या काम है और उसको कब तक वो काम आप तक पहुँचाना है। This is a good way of sectioning or segregating or dividing your email. अब इन दोनों तरीकों में से आप जो भी तरीका इस्तेमाल करें वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो जाए आपके रीडर को कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मेथड क्या है। इसके लिए आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, हाईलाइट, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट योर ईमेल शुड बी विजुअली स्कैनेबल। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ईमेल को अगर जल्दी से उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर भी उसमें से अखज़ कर सकें कि क्या बात की जा रही है, मेरे मतलब की क्या बात है और मुझे जवाब में क्या देना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी ईमेल्स के पैराग्राफ्स बहुत लंबे ना हों, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपने अपनी ईमेल्स को सेक्शन करना है तो आप सेक्शंस में आप अपने कंटेंट को पॉप करवाने की कोशिश करेंगे। पॉप करवाने के लिए आप अपने कंटेंट में जिस तरह अगर आपने किसी इंडिविजुअल का नाम लिखा है और उसके आगे उसके काम लिखे हैं या डेडलाइंस आपने लिखी हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स के लिए, फ़ॉन्ट्स का साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इटैलिक्स कर सकते हैं अपनी ईमेल को ज़्यादा विजुअली स्कैनेबल बनाने के लिए। अब अगर आप ईमेल के पैराग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं तो ईमेल के पैराग्राफ्स में या हम 3 हिस्से कर लेते हैं।
सबसे पहले आपके ईमेल का ओपनिंग पैराग्राफ आता है। ओपनिंग पैराग्राफ आपका 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ईमेल में कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है या कोई इंट्रोडक्शन देना है तो वो भी इस ओपनिंग पैराग्राफ में ही आएगा। उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल कैन बी मोर देन 1 पैराग्राफ, बट ये याद रहे, ज़हन में रहे कि ईमेल के बॉडी के पैराग्राफ भी 3 सेंटेंसेस ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। उसके बाद है योर कंक्लूजन और योर क्लोजिंग पैराग्राफ। इसमें आप अपनी ईमेल को कंक्लूड करते हैं। अगेन आपकी इस पैराग्राफ में 2 सेंटेंसेस या उससे कम होने चाहिए और आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन से क्या मुराद है? ये वो रिस्पॉन्स है जो आपको अगले बंदे से चाहिए इन रिस्पॉन्स टू योर ईमेल। अगले बंदे से आप क्या एक्शन या क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आप इस पैराग्राफ में लिखते हैं ताकि उनको पता हो कि इस ईमेल के जवाब में उन्होंने क्या करना है। नाउ लेट्स लुक एन एग्जांपल। दिस इज एन एग्जांपल। आप देखें कि इन्होंने पहले एड्रेस किया है मिस्टर गैलगर को। उसके बाद दिस इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। नाउ इन योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यू आर बीइंग गिवन द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 लाइन से कम का है। तो दिस इज अ गुड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें वो आपको समरी भी दे रहे हैं कि हमें आपकी ईमेल मिली थी, उस ईमेल में हमारी डिस्कशंस का जिक्र था और ये ईमेल आपने हमें 22 जून को भेजी थी और हम आपकी इस ईमेल से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। दिस इज योर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कि हमें आपकी ईमेल मिली थी, उसमें ये डिस्कशन हुई थी और इस दिन को आपने ईमेल भेजी थी। देन कम्स द मेन पार्ट, द मेन बॉडी ऑफ योर ईमेल कि हम आपको एक मीटिंग के लिए बुलाना चाहेंगे अपने ऑफिस में 30 जून को। तो इसमें आपने मेन बात कर दी है। देन कम्स योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने उनसे कहा है कि आपका कॉल टू एक्शन है कि वी विल बी अवेटिंग योर कंफर्मेशन टू आवर मीटिंग। इसका मतलब है कि हमें इस ईमेल के जवाब में आपसे जो एक्शन चाहिए वो ये है कि आप हमें कंफर्म करें कि आप इस मीटिंग को अटेंड करने आएंगे। देन दे एंड द मीटिंग बाय सेइंग काइंड रिगार्ड्स डैरेन। अगर आप देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीनों 2-2 लाइन्स से कम के हैं। दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मेटेड ईमेल। द नेक्स्ट स्टेप इज द टोन ऑफ योर ईमेल। ईमेल की टोन अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने पिछले सेमिनार्स में देखा होगा, आपकी कम्युनिकेशन का एक बहुत मेजर हिस्सा डिपेंड करता है या मुनसर होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, जेस्चर्स पे, एक्सप्रेशंस पे, आई कांटेक्ट पे, आपकी वॉइस की मॉड्यूलेशन पे, टोन पे, आपकी वॉइस कहाँ इंक्रीज करती है, कहाँ डिक्रीज करती है। हाउएवर, in an email, all of these communications are missing. An email is a written form of communication which is devoid of all such gestures and expressions and body language. तो फिर उससे आपका कम्युनिकेशन का एक मेजर हिस्सा ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि आपके जो वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट हों ताकि उनसे अप्रोप्रिएट बात, अप्रोप्रिएट टोन अगले बंदे तक पहुँचे। अगर आप किसी नए क्लाइंट से बात करें तो आप हमेशा फॉर्मली बात करेंगे। आप मिस्टर, मिसेस, मिस का इस्तेमाल करेंगे, आप डियर सर, डियर मैम का इस्तेमाल करेंगे। कभी फर्स्ट नेम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाय हेलो नहीं यूज़ करेंगे जब तक कि आपका क्लाइंट या अगला पर्सन आपको खुद नहीं कहता कि प्लीज़ यूज़ माय फर्स्ट नेम, या आपकी बहुत लंबी कम्युनिकेशन हो जाए, बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए एंड देन यू बिकम मोर इनफॉर्मल। हाउएवर, अगर आप किसी कोवर्कर को या किसी टीम मेंबर को ईमेल कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात करें, तो आप उनसे साथ इतना फॉर्मली बिहेव नहीं कर सकते। अदरवाइज यू विल कम अक्रॉस एज टू अनफ्रेंडली, वेरी रूड, यू विल गिव ऑफ कोल्ड वाइब्स। वो कहेंगे ये इनअप्रोचेबल है, इससे बात करना मुश्किल है, इसके साथ फ्रेंडलीनेस नहीं हो सकती, ये हमसे रूड है। इस तरह आप एक टीम में काम नहीं कर सकते। टीम में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और अगर कोई आपके साथ फ्रेंडली नहीं है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपकी टीम अच्छी तरह काम नहीं कर सकेगी। सो यू नीड टू बी कॉर्डियल बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने अच्छी बात करनी है मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है। आप उनको जब एड्रेस करेंगे तो आप कहेंगे हाय, आई होप यू फाइंड योर वेल, बट ये नहीं करना कि उम्मीद है आपकी सेहत अच्छी होगी, अगर नहीं है तो खैरियत है, क्या बात है, आपके बच्चे कैसे हैं, वेदर ऐसा है, अल्लाह करे हमारे घर में भी आप अच्छा वेदर हो जाए, जल्दी गर्मियाँ आ जाएं, सर्दी बहुत है या बारिश बहुत हुई। नो, दैट इज़ ऑल वेरी वेरी unnecessary. So you have to be cordial, but you always have to be straightforward because remember, this is email which is a fast form of communication and it has to be very very concise and clear. अब जब हम टोन की बात कर रहे हैं तो ईमेल की टोन 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये टाइप्स हैं फॉर्मल टाइप, सेमी फॉर्मल एंड देन इनफॉर्मल। इन तीनों टोन्स के लिए मैं अब आपको एग्जांपल्स दूंगी और हम उसको डिस्कस करेंगे जिससे आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि फॉर्मल ईमेल से क्या मुराद है, सेमी फॉर्मल ईमेल से क्या मुराद है और इनफॉर्मल ईमेल से क्या मुराद है। लेट्स लुक एट इनफॉर्मल ईमेल फर्स्ट।
If you look, I am emailing this to Sarah and the subject of the email is invitation to a birthday party. अब ये काफ़ी क्लियर है कि एक इनविटेशन है एक बर्थडे पार्टी के लिए. थोड़ा सा वेग है कि किसकी बर्थडे पार्टी है, बट इतना कोई इश्यू नहीं है. अगर वेग सब्जेक्ट लाइन होती तो सिर्फ इनविटेशन लिखा होता या सिर्फ बर्थडे पार्टी लिखा होता. ईमेल सेज हाय सैरा. अब यहाँ पे देखें ईमेल की एड्रेस जो है वो बहुत इनफॉर्मल है, हाय. सेकेंडली इसमें इंट्रोडक्शन और बॉडी ऑफ द ईमेल को कंबाइन कर देगा बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ ईमेल. अब इसमें वो कहते हैं होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम. आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन दिस डेट दिस प्लेस दिस टाइम. अब ये भी बता दिए मेरी बर्थडे पार्टी किस डेट टाइम को है और किस जगह पे होगी, और थीम भी बता दी. इसमें हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक और इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ गलत किया हुआ है, मगर उसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये एक इनफॉर्मल ईमेल है. देन यू एंड द ईमेल बाय सेइंग कि अच्छा होगा आप मेरी ईमेल को मेरी पार्टी पे आएंगे, मुझे अच्छा लगेगा. दैट इज़ अ कॉल टू एक्शन. एंड देन यू एंड योर ईमेल बाय सेइंग सी यू सून लिंडा. दिस इज़ एन इनफॉर्मल ईमेल. तो आपको पता चल गया होगा कि इनफॉर्मल ईमेल का फॉर्मेट क्या है, आपने एड्रेस कैसे करना है और आपने एंड कैसे करना है, और फॉर्मेटिंग कैसे चेंज की जा सकती है. नेक्स्ट इज़ अ सेमी फॉर्मल ईमेल. सेमी फॉर्मल ईमेल में आई एम सेंडिंग दिस ईमेल टू मल्टीपल फ्रेंड्स. These are my colleagues and the subject is inter-college quiz competition. This is a good form of subject line. It says hello everyone. This is a semi-formal form of addressing your friends or your colleagues. और यहाँ पे कोई अगेन इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी जो है ईमेल की उनको कंबाइन कर दिया गया. दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू गाइस कि इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन है, कहाँ होगा, कब होगा, किस टाइम पे होगा, सब बता दिया गया. देन comes your concluding paragraph जिसमें बता दिया गया है कि call to action क्या है. call to action है everyone is asked to participate. then you end by saying thanks Linda. so this is very clear कि आपने एक सेमी फॉर्मल ईमेल में कैसे एड्रेस करना है और कैसे एंड करना है और फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है. द लास्ट वन इज़ फॉर्मल ईमेल. फॉर्मल ईमेल में देखिए हम एड्रेस करते हैं मिस्टर स्मिथ को, और मैं सीसी और बीसीसी कर रही हूँ मैनेजर और एचआर को, ताकि उनके भी नोटिस में आ जाए ये जो भी हमारी कम्युनिकेशन हो रही है. द सब्जेक्ट इज़ रेजिग्नेशन लेटर. ऑब्वियसली ये रेजिग्नेशन लेटर मैं अपना ही भेज सकती हूँ, किसी और का नहीं भेज सकती. सो दिस इज़ अ क्लियर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लाइन. द एड्रेस इज़ डियर सर विच इज़ फॉर्मल. एंड देन द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जिसमें मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, और मैं इसमें बता रही हूँ कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ इस पोस्ट से, और मैं आपको ये ईमेल इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि रिज़ाइन करने से 1 महीना पहले नोटिस देना होता है, इसलिए आपको ये ईमेल की जा रही है. सो दैट इज़ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. देन कम्स द मेन बॉडी जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने मुझे इस कंपनी में ग्रो करने का मौका दिया और आगे के लिए फ्यूचर के लिए अपनी बेस्ट विशेज़ दे रहे हैं. देन कम्स द कंक्लूडिंग पैराग्राफ जिसमें कॉल टू एक्शन है, और कॉल टू एक्शन ये है कि प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एज फार एज माई फाइनल वर्क शेड्यूल एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर कंसर्न. तो मैं पूछ रही हूँ कि इस ईमेल के जवाब में मुझे आपसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो रिस्पॉन्स चाहिए, आप मुझे बताएं कि मेरे एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या हैं और मेरा अगले महीने का क्या शेड्यूल होगा. देन आई एंड द ईमेल बाय सेइंग थैंक्स एंड रिगार्ड्स. दिस इज़ द फॉर्मल वे ऑफ एंडिंग योर ईमेल जिसमें आप बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज, सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ईमेल. अब जब आपने ईमेल की कंस्ट्रक्शन, उसके सारी टिप्स और एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो अब हम कंपेयर करेंगे पुअर ईमेल को और उस ईमेल को गुड बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं. लुकिंग एट द पुअर ईमेल, आपकी ईमेल का सब्जेक्ट है रिविजन्स फॉर सेल्स रिपोर्ट. इसमें मैं अपने कॉलीग को ईमेल कर रही हूँ जिसका नाम जैकी है और मेरा नाम मोनिका है. मेरे ईमेल का सब्जेक्ट है रिविजन्स फॉर सेल्स रिपोर्ट. दिस इज़ अ गुड इनफ एग्जाम्पल फॉर अ सब्जेक्ट लाइन. सो क्योंकि आप सेल्स रिपोर्टर और सेल्स रिपोर्ट की रिविजन्स के बारे में इस ईमेल में बात की जाएगी. आप ईमेल में लिखते हैं अपनी कॉलीग को हाय जैकी. सो इससे आपको पता चल गया कि ये इनफॉर्मल सी ईमेल है या सेमी फॉर्मल ईमेल है. इसमें उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है थैंक्स फॉर सेटिंग दैट रिपोर्ट लास्ट वीक. I read it yesterday and I feel that chapter 2 needs more specific information on our sales figures. I also felt that the tone could be formal. अब यहाँ पे उन्होंने एक ही पैराग्राफ में 2 बातें कर दी हैं. उन्होंने सेल्स फिगर्स की भी बात की है और ईमेल की टोन की भी बात की. ये 2 डिफरेंट बातें हैं जो एक पैराग्राफ में नहीं होनी चाहिए, ये 2 डिफरेंट पैराग्राफ में होनी चाहिए. उसके बाद वो कहती हैं कि हमने पीआर डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग शेड्यूल की है, वो फ्राइडे को होगी, वो एड कैंपेन के बारे में है, ये टाइमिंग्स हैं उसके, और आप बता दें कि आप उस मीटिंग को अटेंड कर सकेंगी कि नहीं. नाउ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल विच इज़ रिविजन्स फॉर सेल्स रिपोर्ट.
इसका मतलब है कि ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और ये इस ईमेल में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी. देन शी एंड्स बाय सेइंग थैंक्स मोनिका. थैंक्स इज गुड इनफ एंडिंग, क्योंकि आप एक इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल ईमेल कर रहे हैं. नाउ लेट्स लुक कि हम इस पुअर ईमेल को गुड ईमेल में कैसे चेंज कर सकते हैं. आप देखेंगे कि गुड ईमेल में सब्जेक्ट वही है, क्योंकि सब्जेक्ट इज गुड इनफ, इट इज सेटिस्फैक्ट्री. मैंने एड्रेस भी सही रखा है, हाई जैकी. देन इट सेज थैंक्स फॉर सेंडिंग द रिपोर्ट, आई रेड इट yesterday, आई फील चैप्टर 2 नीड्स मोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स फिगर्स. सेल्स फिगर्स की बात खत्म हुई तो उन्होंने पैराग्राफ एंड कर दिया. पैराग्राफ एंड करने के बाद नया पैराग्राफ है, आई ऑल्सो फेल्ट दैट द टोन कुड बी मोर फॉर्मल. तो मैंने इसको दो बातों को दो डिफरेंट पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया. उसके बाद मैं उनसे कहती हूँ कुड यू अमेंड इट विद दीज कमेंट्स इन माइंड. अब ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉल टू एक्शन है. फॉर एग्जाम्पल में कॉल टू एक्शन नहीं था, इसमें है कि आप ये ऊपर के कमेंट्स को अपने जहन में रखते हुए अमेंड कर दें, सेल्स रिपोर्ट को रिवाइज कर दें. सो एक एक्चुअल कॉल टू एक्शन आ गया. उसके बाद एंड करने से पहले वो कहती हैं थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क ऑन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ऊपर क्रिटिसिज्म दिया है, कुछ अमेंडमेंट्स करने को कहा है, मगर वो नहीं चाहती कि आप डिसहार्टन फील करें, इसलिए वो आपको अप्रिशिएट भी करी हैं, इनकरेज भी करी हैं आपके हार्ड वर्क को, और आपको अच्छा लगेगा तो आप ऊपर की चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने के लिए भी राज़ी रहेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो दूसरी मीटिंग है, उसके लिए अलहदा से ही एक ईमेल की जाएगी. वो इस ईमेल में मेंशन नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका इस सब्जेक्ट लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है. तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि एक अच्छी ईमेल लिखना क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे लिखना चाहिए, और अच्छी ईमेल और बुरी ईमेल में क्या फ़र्क होते हैं. अब ईमेल भेजने से पहले ईमेल रिव्यूइंग करने का एक तरीका है, और इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको 3 R's का मेथड कहते हैं. 3 R's के मेथड में रीड, रीड्राफ्ट और रिड्यूस का काम किया जाता है. सबसे पहले आप अपनी ईमेल को रीड करेंगे, यानी दोबारा पढ़ेंगे और बाआवाज़ बुलंद करेंगे. इसकी वजह यह है कि एक तो रीड करने से आपको अपनी ईमेल की सारी खामियां, सारी गलतियां आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, मगर आवाज़ बुलंद से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आपकी ईमेल की टोन और स्टाइल अप्रोप्रिएट है या नहीं. उसकी टोन सही है, बदतमीज़ी तो नहीं लग रही, रूड तो नहीं लग रही, ज़्यादा फ्रेंडली तो नहीं है, ज़्यादा अनफ्रेंडली तो नहीं है. इसलिए आप अपनी ईमेल को रीड करेंगे. उसके बाद आपने जो गलतियां आइडेंटिफाई की हैं उसकी बेसिस पे आप अपनी ईमेल को रीड्राफ्ट कर सकते हैं. आपकी ईमेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, टेंसिंग मिस्टेक्स हैं, फॉर्मेटिंग की मिस्टेक्स है, कोई पैराग्राफिंग बहुत ज़्यादा लंबी हुई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन आपने अनक्लियर है तो आप उसको क्लियर बना सकते हैं, कोई एम्बिग्विटी है उसको रिमूव कर सकते हैं. ये आपकी ईमेल की रीड्राफ्टिंग हो जाएगी. उसके बाद आप ईमेल को साइज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ अ शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो आप कोई अगर चीज़ें डुप्लीकेट हुई हैं या कोई बात ज़्यादा छोटे तरीके से की जा सकती है तो आप वो करने की कोशिश करेंगे. अब अगर आपने ये तीनों आर्स इस्तेमाल कर लिया, आप अपनी ईमेल से सेटिस्फाइड हैं, तो आप सेंड बटन क्लिक कर सकते हैं और आपकी ईमेल चली जाएगी. हाउएवर, अपनी प्रेजेंटेशन या सेमिनार को एंड करने से पहले मैं ये आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी कि 2 और गलतियाँ हैं जो बहुत से लोग जल्दी में कर जाते हैं अपनी ईमेल्स में. वो गलतियाँ मैं एड्रेस करना चाहूँगी. पहली गलती ये है कि आप बहुत बार ईमेल में कोई अटैचमेंट करनी होती है और आप लिख देते हैं कि इस ईमेल में मैंने अटैचमेंट की है, मगर आप एक्चुअली अटैच करना भूल जाते हैं उस डॉक्यूमेंट को और ईमेल चली जाती है. फिर आपको एम्बैरेसमेंट होती है और दोबारा ईमेल भेजते हैं कि सॉरी, अटैचमेंट तो मैंने की ही नहीं थी. इससे बचने के लिए तरीका यह है कि जब आप ईमेल खोलें रिप्लाई करने के लिए या नई ईमेल लिखने के लिए, तो आप कुछ भी लिखने से पहले अपनी अटैचमेंट अटैच करेंगे. अटैच करने के बाद आप ईमेल लिखना शुरू करेंगे, ताकि अगर एंड में आप भूल भी जाएं तो आपकी ईमेल अटैच्ड ही रहे जब आप ईमेल को सेंड करें. सेकंड चीज़ ये है कि हम बहुत बार ईमेल लिख रहे होते हैं और हमारी ईमेल आधी अधूरी रह जाती है, हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हमारा कहीं हाथ लग जाता है, हमारी ईमेल सेंड हो जाती है गलती से. इसको प्रिवेंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप ईमेल लिखें तो एड्रेस जो है वो नहीं डाला, ईमेल एड्रेस नहीं डाला. पहले पूरी ईमेल टाइप करनी है, उसको रिव्यू करना है, उसको जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि वो इफ़ेक्टिव ईमेल है, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन भी बेस्ट किया, उसको रिव्यू भी कर लिया है, उसके बाद आप फिर एड्रेस लाइन में ईमेल एड्रेस डालेंगे रेसिपिएंट का, एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द सेंड बटन. दिस इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द एम्बैरसिंग प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर अगर आप ईमेल भेज रहे हैं. होपफुली आपको हमारी ये ईमेल की सेमिनार अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा.
Before I end, I'd like to thank you all for taking your time out to see this seminar. Hopefully आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा. You would have found some useful and interactive tips which can make you better professional communicators in your future. हम ये सेमिनार एंड करें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इस सेमिनार से रिलेटेड एक फ़ीडबैक फॉर्म जनरेट करूँगी और उसको फ्लोट करूँगी. वो गूगल फॉर्म्स पे होगा और उसके मैं लिंक आप सबसे शेयर करूँगी ईमेल के थ्रू. आप सबसे उसकी फ़ीडबैक ली जाएगी ताकि मैं इस सेमिनार को नेक्स्ट जब मैं डेवलप करूँ तो उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा सके ताकि बाकी बच्चे या बाकी स्टूडेंट्स अगली बार इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके. होपफुली आप अपना ख्याल रखेंगे इन टाइम्स में. यू विल स्टे सेफ एंड यू विल हैव गुड एंड हैप्पी रमज़ान. होपफुली लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.